Hello everyone. In today's lecture we will discuss the governing of Pelton turbine. तो सबसे पहले governing, why governing is required? Because we all know the turbines are produce mechanical work and that mechanical work is utilized to produce electric power with the help of generator. So the electric power or load on generator is fluctuating क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो लोड है हमारा वो ईयर वाइज विंटर में अलग डिमांड होती है, समर में अलग डिमांड होती है. अगर इफ वी टॉक अबाउट डे वाइज देन इन द मॉर्निंग द डिमांड इज डिफरेंट एंड इन द इवनिंग डिमांड इज डिफरेंट. सो हाउ वी विल regulate that demand? Because when the demand is increased, when the demand increase the turbine speed will decrease, and when the demand decrease the turbine speed will increase. तो इसको रेगुलेट करने के प्रोसेस को गवर्निंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन विद द हेल्प ऑफ दीज अरेंजमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड इन गवर्निंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन. वन इज governor, very important, and the governor is directly attached with the turbine, and this is oil sump and this is servo motor and relay control valve, fulcrum and bell crank lever and nozzle, sphere and deflector. Here the water from penstock is coming through the nozzle to the turbine. Main turbine blades are here, and with this the turbine is rotating, and the one shaft of turbine is directly connected with the governors. So now let us see, there will be two cases. In one case, when the load increases the turbine speed will decrease, and in second case when load decrease the turbine speed will increase. तो मैं सबसे पहले केस ले रहा हूँ. अगर जनरेटर में हमारा लोड डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन? व्हेन द लोड ऑन द जनरेटर विल डिक्रीज द टर्बाइन स्पीड विल increase, and as this governor is directly connected to the turbine, and when the turbine speed is increased, this governor flywheel will, due to inertia, this sleeve will move upward direction. In upward direction, and then with this, when this sleeve move upward direction, then due to this fulcrum this move upward and this will move downward. तो जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो रिले कंट्रोल वाल्व में जो हमारा फंक्शनिंग होगी दैट विल बी थ्रू P3 and P5 सॉरी P1 एंड P5 जो फंक्शनिंग होगी. जैसे ही ये डाउनवर्ड होगा हमारा P4 क्लोज हो जाएगा, जो फंक्शनिंग होगी हमारी P1 एंड P5 से. तो एक ये ऑयल पंप लगा हुआ है यहाँ से, तो ऑयल पंप के थ्रू जैसे ही ऑयल यहाँ जाएगा और ऑयल P5 के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर जाएगा, हमारा P5 के इसके एंटर करेगा, एंड दिस विल पुश पिस्टन टू दिस डायरेक्शन. तो जैसे ही वो इस डायरेक्शन में पिस्टन को मूव करेगा तो यहाँ पर जो ऑयल है, इस पॉइंट पर जो ऑयल है वो इसके थ्रू यहाँ पे ऑयल सम्प में चला जाएगा. नाउ सी, व्हेन दिस मूव टू दिस डायरेक्शन एंड द स्फीयर मूव्स फॉरवर्ड, स्फीयर जो हमारा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड दिस विल रिड्यूस द एरिया ऑफ नोजल. एंड बाय रिड्यूसिंग एरिया ऑफ नोजल, जो वाटर का फ्लो हो रहा है जो कि टरबाइन के ब्लेड्स पे यहाँ पे हो रहा है, वाटर का फ्लो जो टरबाइन के ब्लेड्स पे है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो जैसे ही टरबाइन की स्पीड बढ़ी वाटर का फ्लो रिड्यूस हो गया. अब जब वाटर का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो टरबाइन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो when the load decrease turbine speed will increase, and due to this increase the flywheel will move upward and this sleeve will move upward, and due to this upward motion the fulcrum is there and fulcrum valve upward, and this piston will move downward, and then when the piston move downward the P1 and P5 will function at a time. Then through the oil pump the oil will come through P1 and exit to the P5, and through this P5 the oil will provide force to forward motion of the piston, and due to this forward motion of the piston
the sphere will move forward, and that will reduce the area of nozzle, and by that reducing the area, the flow is also reduced. So we can control the speed. So this is all about the controlling of speed when load decreases and turbine speed increases. Now we will discuss when the electric load on generator will increase and the turbine speed will decrease. Now see here, when the turbine speed decrease, the sleeve move downward direction. When the turbine speed decrease, the sleeve move downward direction. और ये डाउनवर्ड कब मूव करेगा? जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. सडनली अगर कोई काम हो रहा है उस पर एकदम से एक वेट धर दो, एक वेट धर दीजिए. बाइक है हमारी, जब हम बाइक पे चलते हैं, व्हेन वी आर सिंगल एट बाइक वी आर मूविंग एट 80, एंड सडनली अगर उस पर कोई एक वेट रख दें हम, तो स्पीड इंजन पे लोड पड़ेगा और एकदम से रिड्यूस हो जाएगी. जस्ट लाइक इन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी तो एकदम से टरबाइन की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही टरबाइन की स्पीड रिड्यूस होगी तो ये जो बॉल है इनर्शिया इफेक्ट इनके अंदर कम हो जाएगा और ये स्लीव हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. तो इसके अपवर्ड में होते ही अब जो हमारा मूवमेंट होगा P1 एंड P4 के साथ होगा. P5 जैसे ही अपवर्ड जाएगा, P5 हमारा क्लोज हो जाएगा. नाउ द फंक्शनिंग विल P1 टू P4. तब ऑयल पंप के थ्रू, ये ऑयल पंप है, ऑयल हमारा यहाँ से जाएगा. नाउ अब वो P4 के थ्रू एंटर होगा. P4 के थ्रू एंटर होने के बाद में इस डायरेक्शन में पुश करेगा इस पिस्टन को, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा तो जो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड ऑयल है वो इसके थ्रू वापस ऑयल सम्प में चला जाएगा. और जैसे ही ये पिस्टन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये स्फेयर जो लगा हुआ है इसके साथ में, स्फेयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड द एरिया ऑफ द नोजल विल इंक्रीज एंड द फ्लो टू द टरबाइन. जो टरबाइन में ब्लेड्स लगी हैं उस पर अब जो फ्लो होगा वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ होगा. तो जैसे ही यहाँ पे लोड कम हुआ, जैसे ही टरबाइन की स्पीड कम हुई, फ्लो बढ़ गया और टरबाइन की स्पीड मेंटेन हो गई. तो इसके अंदर हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं ताकि जो हमारे सप्लाई है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो एक कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएट ना करे, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो. अब ये बेल क्रैंक लीवर का क्या वर्क है? जैसे ही हमारा ये नीचे की तरफ आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा. अब ये जैसे ही कैम हमारा ये तो हमारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ, तो जो डिफ्लेक्टर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो वाटर है वो पेन स्टॉक में नीचे वापस चला जाएगा. वाटर जो हमारा है वो पेन स्टॉक में नीचे वापस चला जाएगा. तो हमने इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं. कौन कौन से? या तो टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी, और कब बढ़ेगी हमारी टरबाइन की स्पीड? जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमारी घट जाएगी. जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमारी घट जाएगी, जैसे कि कोई बाइक है, कोई पर्सन है, अगर वो जा रहा है, उसके ऊपर अगर हमने 50 किलो का वजन रख दें एकदम से, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी. अगर वजन उतार देते हैं हम तो बहुत तेज़ी से चलता रहेगा. तो जस्ट इसी की तरह हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी तो टरबाइन जो हमारी मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रही है वो एकदम से हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड घट जाएगी टरबाइन की स्पीड हमारी बढ़ जाएगी. तो उसको बाय रेगुलेटिंग दिस नोजल में स्फेयर लगा हुआ है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होगा, तो उसके फ्लो को हम रेगुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस अरेंजमेंट. और इस अरेंजमेंट में हमने कितने डिवाइसेस यूज़ किए हैं? गवर्नर जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा टरबाइन से, जो टरबाइन हमारी रोटेट हो रही है. और ये ऑयल सम्प में ये ऑयल पंप है. जब हमारा जो टरबाइन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जब हमारी टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी तो P1 और P5 में वर्किंग होगी. जब टरबाइन की स्पीड घट जाएगी तो हमारा P1 एंड P4 के थ्रू एंड वर्किंग होगी. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो and you have enjoyed this lecture. If you have any confusion, any doubt in this diagram, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही है. तो आज हमने डिस्कस किया गवर्निंग ऑफ पेल्टन टरबाइन.